Okay, hi. Hello, मेरे प्यारे बच्चों. Myself Vishal Gupta. I welcome you all on DailyLearn platform. We from DailyLearn, we are the teachers from DailyLearn. We are creating some curated courses especially designed for term 2 syllabus. तो बच्चे जो भी क्लास 10th में हो अभी उनके लिए हम लोग अपने टर्म 2 के कोर्सेज को ला रहे हैं. All those who are watching this, I request you all to go and watch the full video and don't miss anywhere. So I welcome you all in our today's session. Again, let me introduce myself and the team that we are working with. I myself, Vishal Gupta, am a physics educator. I will be teaching you some of the very important concepts regarding your class 10 term 2 syllabus. Let's just me check we are live or not. If we are live, is good. Yeah, I can see myself. We are live now. Good to see. Cool. My voice is also cool. ओके, चिल है बच्चों. तो अभी यार आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू कवर द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी. नाउ यू नो कि फिजिक्स में अपने पास देयर आर सम लिमिटेड चैप्टर, राइट, जिसमें कि अपना जो इलेक्ट्रिसिटी है सबसे इम्पोर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि इसके अलावा जो चैप्टर है दैट इज योर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, अभी बाकी चैप्टर हम लोग ने कवर कर लिए हैं इन द टर्म वन. तो ये इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दे आर गोइंग टू प्ले हमंगस रोल इन योर प्रिपरेशन, जिसमें से आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को खत्म करेंगे और वील ट्राई टू कवर मैक्सिमम टॉपिक्स फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी. जैसे आई come up with some concepts जो आपको बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, दैट वी आर गोइंग टू कवर टुडे, which are introduction regarding to the electricity, electric charges that we need to study, and electric current and potential and the basic circuit diagrams. आज हम लोग का ये मोटो रहेगा कि in today's session we will be covering introduction, electric charges, electric current and potential, and electric circuit diagrams. So just wait for 2 minutes. Let the notification goes to every student. Let them also come on the platform and watch the free live stream of electricity chapter. So let me just again brief about who I am and from where we are. So myself Vishal Gupta, and I am from the team DailyLearn, where we are creating some amazing courses for you all. बच्चों टर्म टू हम लोग पूरा कवर कर रहे हैं. वी आर कवरिंग कंप्लीट टर्म टू सिलेबस. तो आपके टर्म टू में जो जो आने वाला है, लाइक क्लास 10th और क्लास 12th के रिगार्ड्स में, तो बीट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी, राइट, जो आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं, वी आर कवरिंग ऑल ऑफ देम in class 10th, as well as we are also creating the same for class 12. So do check our pages, do check our website. Everything is mentioned in the bottom, in the footer below. So you all can see it. You can check our details out there, our contact number, our telegram group. You can join the telegram group. You will be getting the basic details on the daily basis, what all syllabus that we are covering, what all chapter that we are live streaming, सबको मिलता रहेगा वहाँ पे. चलो, तो आई थिंक वी आर गुड टू गो. वी आर गेटिंग द वॉचिंग एज वेल, और बहुत बच्चे देख रहे हैं हम लोगों को. स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी का. अच्छा, फ्रॉम द वेरी इनिशियल अगर मैं आपसे पूछूंगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी इन योर टर्म्स, हाउ यू डिफाइन इलेक्ट्रिसिटी एंड हाउ इंपॉर्टेंट इज इट इन आवर डेली लाइफ. इलेक्ट्रिसिटी है क्या, कितनी इंपॉर्टेंट है और क्या रोल प्ले करती है हमारी डेली लाइफ में. यू ऑल मस्ट बी सेइंग कि सर इलेक्ट्रिसिटी प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल. डेली डेली हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का ही यूज करते हैं, बी इट चार्जिंग आवर फोन्स, लैपटॉप्स, consuming the air from the fans, lightings, right? हर जगह you must have seen the electricity, and this is one of the biggest innovation. Let me tell you, one of the biggest innovation of the human era. हम लोग ने बहुत बड़ी एक इनोवेशन करी बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिसिटी की खोज करके, या फिर आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन्स की खोज करके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से सब कुछ डिपेंडेंट है. तो यू ऑल मस्ट बी नोइंग अबाउट द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो कि होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एटम्स के बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी. आगे मैं शिफ्ट चलता हूँ आपको, और अभी डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को. वी बी मेकिंग श्योर कि हम लोग जो भी पढ़ाएं आपको वो डिटेल एनालिसिस हो. आप लोग एक प्रॉमिस करना कि आप लोग लेक्चर को पूरा देखना, लाइक वॉच टिल द एंड, डोंट मिस एनीथिंग इन बिटवीन. ये लेक्चर रिकॉर्डेड भी सेव रहेगा. इन केस इफ यू मिस एनी सेगमेंट ऑफ इट, डू ट्राई टू लाइक आप उसको बाद में देख पाओ. आप ऐसा करना, अदरवाइज इट वुड बी ट्रबलसम. अगर आप हाफ नॉलेज दोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी. यू नो ना, नो नॉलेज इज बेटर देन हाफ नॉलेज. अगर आप हाफ नॉलेज कंटेन करते हो तो कहीं ना कहीं मिसकंसेप्शन क्रिएट हो जाएंगे, एंड दैट मिसकंसेप्शन कैन लीड यू टू लाइक गेटिंग द रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स इन योर माइंड. तो अगर वो रॉन्ग कॉन्सेप्ट जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं मार्क्स में कॉम्प्रोमाइज होगा.
और ऑल्सो मेक श्योर कि आप बच्चों अपने संग एक कॉपी लेके बैठो, एक कॉपी पेन लेके बैठो, नोट्स बनाते हुए चलना, कि नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज विदाउट नोट्स दिस सम टू इज गोइंग टू बी सब्जेक्टिव। अगर ये सब्जेक्टिव है तो हमको कहीं ना कहीं नोट्स की बहुत ही अच्छे से रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, क्योंकि सर हमको तो लिख के आना है एग्जाम में। तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो फ्रॉम द वेरी इंट्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, लेट्स स्टार्ट आवर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं उसका मैं कोई आइडिया दे देता हूँ कि पहले तो चार्जेस होते क्या हैं, व्हाट आर द चार्जेस। चार्जेस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, राइट। व्हाट मेक देम चार्ज, ऐसा क्या होता है कि इसके साथ चार्ज हो जाते हैं या फिर कुछ चीजें चार्ज होती हैं कुछ चीजें चार्ज नहीं होती हैं, इसकी बात हम लोग करेंगे। क्योंकि हम लोग को पता है बच्चों कि बिना चार्ज के इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो पॉसिबल नहीं है। चार्ज हैज टू बी देयर, राइट। यू ऑल मस्ट हैव फेल्ट कि जब आप वो कॉम्ब से अपने हेयर को रब करते हो तो यू आर एबल टू अट्रैक्ट सम पीसेस ऑफ पेपर, हाँ। तब आपने करा होगा कि आपने कॉम्ब से या फिर स्केल से अपने सर को रब करा होगा, और फिर पेपर से आपने देखा होगा कि यू आर कलेक्टिवली getting the paper attracted by the scale or the comb। तो वो ऐसा क्यों होता है, या फिर आपने अपने हेयर्स में बैलून को रब करा होगा फिर उसको दीवार में चिपकाया होगा तो वो चिपक गए होंगे। ना व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, क्या कभी खुद से पूछा है क्या वहां पे भी इलेक्ट्रिक चार्ज ही है हमारे पीछे, which is very important and which is why we see the changes and the attractive forces in the at the surface of the particular object, right। तो this is what is important for us, इसी को हम लोग लेके आगे चलते हैं कि चार्जेस क्या होते हैं, और फिर इस चैप्टर को पूरा बिल्ड करेंगे हम लोग फ्रॉम द वेरी इनिशियल। तो what are the electric charges, with the initial you can see a dog is getting rubbed by a balloon and now you can see the balloon is rippling that small plastic thread, right। अब देख रहे हो कि वो उसको रिपेल कर रहा है as we are closing the balloon to that particular प्लास्टिक सरफेस इट इज गेटिंग रिपल्ड। तो ये क्यों हो रहा है अभी खुद से ना पूछो इसको, क्योंकि ये आपने फील करा है। बट अगर मैं बात करूं तो ये हुआ क्या है, क्या आप देख पा रहे हो कि सर when we are rubbing when we are rubbing the balloon with the fur of the dog, जो उसके हेयर है उससे रब कर रहे हैं, तो काइंड ऑफ चार्ज प्रोड्यूस हो रहा होगा, उसी की हम लोग बात करने वाले हैं। Isn't it amazing कि आपके पास में क्यूरोसिटी माइंडसेट आ पा रहा है कि यार how important electricity is, literally it is all in our surrounding। तो we all can see that electrons are all everywhere, जहाँ जहाँ एटम है वहाँ वहाँ इलेक्ट्रॉन है। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत काम इंपॉर्टेंट आने वाले हैं हमारे लिए जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराएंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, it could have been your hair and the piece of paper too, right। it's not necessarily कि वो डॉग के, अब ऐसा ना करना कि यार तुम रस्से से एक डॉग को पकड़ के खींचने लगो उसके ऊपर यार बैलून, तो घमासान मौजूद हो जाएगा तुम्हारे उसके बीच में। डोंट ट्राई दिस at your home। बाकी और like what you can do, you can just simply rub on over your hair and you can see the difference, you can see that how the charges are getting converted and it is getting attracted repelled by some object, right। अभी अट्रैक्शन रिपल्शन की प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी, उसको हम लोग देखेंगे आगे। बट फंडामेंटल से स्टार्ट करते हैं। तो if you can use your hair this could also be possible, like masses and the charges is a fundamental property of the matter। जैसे बच्चों हमने पढ़ा था, आपको याद होगा चैप्टर हमने ग्रेविटेशन पढ़ा था, याद है। हम लोग ने क्लास 9 में चैप्टर पढ़ा था ग्रेविटेशन, जहाँ पे हम लोग ने फोर्सेस निकाले थे बिटवीन टू मासेस, याद है वो बच्चों। अब हमने फोर्सेस निकाले थे, अगर एक हमारे पास m1 मासेस है m2 मासेस है, द फोर्सेस दैट द बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर अप्लाइंग ऑन ईच अदर, हम लोग ने वहां से निकाला था, राइट। वैसे ही जब हम लोग मास की बात करते हैं, जैसे मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर है, वैसे चार्जेस भी क्या है बच्चों, वैसे चार्जेस भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर है। सर ये बात कैसे, थोड़ा समझाइए कि हाउ चार्जेस आर इम्पोर्टेंट एंड हाउ दे आर प्लेइंग द रोल ऑफ द फंड, हाउ वी आर सेइंग दैट दे आर द फंडामेंटल प्रॉपर्टी। अभी आप ध्यान से देखो, क्या जहां पर मैटर है वहां पे मास इंपॉर्टेंट है, और जहां पे चार्जेस है, चार्जेस इन द सेंस कि आपने देखा होगा कि अगर एक वायर है तो एक वायर के पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट। तो वहां पे चार्जेस का ही इक्वली वेटेज है बच्चों। तो चार्जेस भी क्या है, दे आर ऑल्सो द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर, दे आर ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट एंड दे आल्सो अप्लाई द फोर्सेस। जैसे अगर हम लोग ने बात करी थी ग्रेविटेशन में, वहां के दो मासेस के बीच में चार फोर्सेस लग रहे थे, तो यहाँ पे दो चार्जेस के बीच में फोर्सेस लगते हैं बच्चों, एंड वी विल आल्सो बी कैलकुलेटिंग दैट फोर्स, व्हाट आर दीस फोर्सेस एज वेल। यहाँ पे चलते हैं बच्चों, बोला क्या है कि देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस, नाउ वी नो व्हाट आर दीस टू चार्जेस आर, दीस आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। दो तरह के चार्जेस होते हैं बच्चों, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अच्छा हम लोग ने इसको नाम दिया है, ऐसा नहीं है कि दे कम अप विद देयर ओन नेम, दिस इज व्हाट वी हैव गिवन देम, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज। हमने देखा कि यार कुछ चार्जेस तो थे वो
एक ऐसा देखो कि मैंने एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में पास लाया, जैसे एक ऑब्जेक्ट के पास में दूसरा ऑब्जेक्ट लाया और जब भी मैं ऑब्जेक्ट दूसरा पास लाया, तो कभी ये अट्रैक्शन शो कर रहा था, कभी ये अट्रैक्ट कर रहा था इसको और कभी इसको रिपेल कर रहा था। तो वहाँ से थ्योरी क्रिएट हुई है कि देयर आर सम डिफरेंट काइंड ऑफ चार्जेस, तो मैंने उसका नाम दिया कि सर एक रहे होंगे पॉजिटिव चार्जेस और एक रहे होंगे नेगेटिव चार्जेस। दैट्स अ थ्योरी गॉट क्रिएटेड अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ चार्जेस, राइट? तो ये बहुत बेसिक सा कांसेप्ट है बच्चों, वैसे ध्यान से देखो तो। क्या ये ऐसे पहले नहीं था कि अचानक से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आ गए, उन्होंने उसको देखा और उन्होंने इंट्रोड्यूस करा? नो, दीज़ आर जस्ट बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ देम कि वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। देन वी देन वी डिड सम एक्सपेरिमेंट्स थ्रू व्हिच वी कम टू द कंक्लूजन कि यार कुछ जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, कुछ जो डिफरेंट चार्जेस होते हैं वो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। नाउ यू आल्सो नो दिस प्रॉपर्टी, ओके? चलो देखते हैं वो एग्जैक्ट प्रॉपर्टीज हैं क्या, व्हाट सजेस्ट टू अस। तो एक बात तो क्लियर हो गई सर, एक हो गए पॉजिटिव चार्जेस और एक हो गए नेगेटिव चार्जेस। बट लेट मी आस्क यू, व्हाट आर दीज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस? अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या है और नेगेटिव चार्ज क्या है? तो आप मुझे क्या बताओगे कि सर जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये सर तो प्रोटॉन्स की बात होते थे ना? ये अगर एक हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल में जाएँ या फिर एटम्स की बात करें, तो प्रोटॉन्स के पास जो चार्जेस होते हैं सर वो तो पॉजिटिव होते हैं, बिल्कुल सही। और इन द अपोजिट सिनेरियो अगर हम लोग नेगेटिव चार्ज की बात करें, तो जो नेगेटिव चार्ज कहाँ थे? इलेक्ट्रॉन्स के पास थे, राइट? तो जब हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात करेंगे तो हम लोग ये प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे होंगे कहीं न कहीं। वी आर समवेयर विल बी बिल्डिंग द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स देमसेल्फ। तो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड क्योंकि ये चैप्टर जो है, ये आपके फंडामेंटल्स से बहुत इम्पोर्टेंट है और इट 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 होल्ड अ वेरी वेरी बेसिक्स ऑफ द फिजिक्स विद यू। बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है वो फिजिक्स का पार्ट आपके पास। नाउ इफ आई आस्क यू ऑल कि लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस के बीच में क्या-क्या रिलेशन होता है? लेट मी टेल यू बच्चों, अगर मैं 2 लाइक चार्जेस को लेता हूँ, लेट्स से 2 लाइक चार्जेस आर देयर, लाइक लेट दे कुड बी पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, दे बोथ आर द लाइक चार्ज, राइट? अगर मैं पॉजिटिव और पॉजिटिव को संग में रखता हूँ, तो नाउ यू नो अगर 2 लाइक चार्जेस संग में आते हैं, तो दे शो द रिपल्शन, दे शो द रिपल्शन, ये आपस में रिपल होते हैं बच्चों। प्रॉपर्टी ऑफ रिपल्शन इज गेटिंग शोन, राइट? दोनों जगह, यहाँ पे रिपल्शन होगा, यहाँ पे भी रिपल्शन होगा। So whenever two like charges comes closer to each other, what we have seen experimentally, ये हमने थ्योरी बनाई नहीं है बच्चों। This is what the nature has told us। हम लोग ने बस उसको नाम दिए हैं, हम लोग ने बस उसको क्यूरेट करा है, लेकिन ये सब तो हमारे पास फंडामेंटली पहले से प्रेजेंट था। Now, what is the theory? Then when two positive charges are coming close to each other, they are showing the repulsion. Right? Or similarly, if two negative charges are coming together, they are also showing the repulsion. इसका मतलब क्या है? अगर दोनों ही रिपल कर रहे हैं, तो क्या हम लोग यहाँ से एक थ्योरी सजेस्ट कर सकते हैं that same charges, that same charges kind of repel each other, क्या ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं? दिस इज द प्रैक्टिकल प्रूफ, देयर आर प्रैक्टिकल प्रूफ्स ऑफ इट, राइट? अभी अगर हम लोग बात करें दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की, अनलाइक चार्जेस की बच्चों, अगर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव को लेके आता हूँ या फिर नेगेटिव और पॉजिटिव को लेके आता हूँ, बोथ द केसेस दे बोथ आर द डिफरेंट चार्जेस, अनलाइक चार्जेस, डिफरेंट चार्जेस को हम लोग बोलते हैं, डिफरेंट चार्जेस को ही हम लोग बोलते हैं अनलाइक चार्जेस, राइट? तो इफ टू डिफरेंट चार्जेस आर कमिंग क्लोज टू ईच अदर, व्हाट वी हैव सीन दैट सर यहाँ पे एक्शन होता है। वी हैव सीन दैट देयर इज़ अ एक्शन इन बिटवीन देम। तो यहाँ पे मैंने जो स्टेटमेंट लिखा है, सब ब्रीफ ऑफ द स्टडी दैट वी हैव डन फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर, राइट? क्या बोला गया है दैट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो अनलाइक चार्जेस होते हैं, दे काइंड ऑफ अट्रैक्ट, दे कम क्लोजर टू ईच अदर, एंड ऑन द अदर हैंड द लाइक चार्जेस आर रिपेलिंग ईच अदर। ये एक बहुत बेसिक सी थ्योरी है। अच्छा, ये बात आपने बच्चों और भी पढ़ी होगी। अगर मैं आपसे बात करूँ कि आपने अगर देखा हो, इफ वी ब्रिंग ब्रिंग टू सेम पोल्स टू ईच अदर, क्या आपने वो बात याद है ना मैग्नेट वाली? अगर आप दो सेम पोल को पास में लाते हो, तो वो क्या करते हैं बच्चों? वो रिपल्शन क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर आप दो डिफरेंट पोल्स को संग में लाते हो, वो अट्रैक्शन शो करते हैं, राइट? दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये वही थ्योरी है कहीं न कहीं। चार्जेस का बस डिफरेंस है, वहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल्स होते हैं और मैग्नेटिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट है हमारे। दैट्स द डिफरेंस। लेकिन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक things are almost relatable, they are very much relatable। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती हैं, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड्स भी होती हैं। तो दिस इज व्हाट द थ्योरी हैज बीन सजेस्टेड टू अस कि इलेक्ट्रिक चार्जेस होते क्या हैं। बट लेट मी अगेन क्रिएट द माइंडसेट टू यू कि भाई इलेक्ट्रिक चार्जेस की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है, तो ये बात अपने माइंड में याद रखनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिक चार्जेस हमारे लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं,
and what we all observe from the electric charges. So what the rough idea that we are getting, बहुत सिंपल सा कि दो काइंड ऑफ चार्जेस होने वाले हैं। वन इज द पॉजिटिव काइंड ऑफ चार्जेस, अनदर द नेगेटिव काइंड ऑफ चार्जेस। जब हम लोग पॉजिटिव पॉजिटिव को संग में लाएंगे या फिर नेगेटिव नेगेटिव को संग में लाएंगे, व्हेन टू लाइक चार्जेस आर कमिंग क्लोज टू ईच अदर, they will be seeing high repulsion power in between them, whereas when two different charges are coming closer to each other, they will be showing action between them, right? Now imagine that both of these sides of my hand, right, are same charges, but this and this are different. By the color, you can identify them, right? Now you tell me if I'll bring these two together. क्या आप देख पा रहे हो? I am bringing the same color together. It means the same charges are getting closer to each other. If the same charges are getting closer to each other, we'll be seeing the repulsion. We'll be seeing that the directive forces that are getting created between the charges are in the opposite direction. वो दूर जा रहे होंगे. But if I make uh, one side like whitish, another side blackish, it means that two different kind of charges are coming close to each other. Now, what you will see in that case, what you will see when two these charges are coming closer to each other, you will be seeing, sir, kind of attraction is getting taking place, right? So these two will be attracting each other. Now, why we are studying this topic of attraction and repulsion and the electric charges? Because, बच्चों, let me tell you, these electric charges are what has made our life very simple. ये चार्जेस ही हैं जिनकी वजह से आज हम लोग अपने फोन्स को चार्ज कर पाते हैं। वी आर लिविंग इन अ मॉडर्न वर्ल्ड वेयर वी आर हैविंग कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रिफिकेशंस, लाइट्स, फैंस, ACs, geyser, freezer, everything in our houses, right? Because of these only the trains are moving, somewhere the magnetic trains, maglev trains are also working on the same concepts where the magnetic levitation is there, but charges hold a very importance out there also क्योंकि वहां पे भी magnetic field होने वाली है। So everything around us, the modification that you are seeing from your ancient era to the global era that we are presently in, वो कहीं ना कहीं इन चार्जेस की वजह से हुआ है। कहने के लिए बहुत छोटे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन व्हेन दे कंबाइन ऑल टुगेदर, दे आर सफिशिएंट इनफ टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय एनीथिंग आउट देयर, राइट? तो इस बात को हम लोग बस माइंड में रखेंगे बच्चों, और अपने आगे कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं। आई एम होपिंग दैट यू ऑल आर गेटिंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अभी आप यहाँ से चीज़ों को छोटे-छोटे फंडामेंटल तरीकों से समझ पा रहे होंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड कम्स टू द इलेक्ट्रिकल टर्मिनोलॉजी कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी में होता क्या-क्या है। देयर इज़ अ वेरी गुड जिफ दैट आई हैव टेकन वेयर द मिनियंस आर connecting the wire and the current is flowing through the circuit, right? And you can see a minion is getting lighting up. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, if you see it clearly, क्या इलेक्ट्रिक टर्मिनोलॉजी में कुछ बेसिकली कुछ हमारे पास अप्लायंसेस के टर्मिनोलॉजीज होती हैं, उनकी बात करते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है बच्चों। नाउ इलेक्ट्रिक सर्किट यू ऑल हैव सीन एट योर होम कि आप अगर चाहते हो और अपने बोर्ड में स्विच ऑन करते हो, तो यू कैन सी द bulb lighting up, right? And like let's take a very simple example. You all can see my mobile right here. I think you all can see. Now, when I like is right now disconnected, as soon as I plug in, what you all can see, sir, it's getting charged. How it is happening? A circuit is getting completed, and we are holding up to charging a phone. Isn't it amazing? कभी ध्यान से देखो यार, लाइक हम लोग को लगता है कि ये सब हमको मिल गया तो कितना इजी है, बट गो इन द वेरी बेसिक्स एंड देन सी द मिरेकल्स दैट वी आर क्रिएटिंग ऑन द डेली बेसिस। एक एक स्विच ऑन करने से लाइट जल जाती है, द पूरा कमरा ग्लो हो जाता है। एंड सिमिलरली अगर आप नेशन वाइड जाओगे, वर्ल्ड वाइड जाओगे, यूनिवर्स वाइड जाओगे, तो how many miracles are happening every second? Just kind of imagine it, right? तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? एक क्लोज पाथ जिसके अंदर करंट फ्लो होगा, राइट? तो अ continuously and a continuous, what is the next step? A continuous and a closed path of an electric current is called an electric circuit. ध्यान से सुनना। अभी मैं कोई डायग्राम नहीं बनाऊंगा बच्चों। अभी बस आपको उस माइंड को अपने इमेजिन करना पड़ेगा, क्योंकि डायग्राम में तब बताऊंगा जब मैं आपको हर एक सर्किट का सिंबल बता दूंगा। आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा तब। तो एक सर्किट क्या है? सर एक सर्किट वो क्लोज़ पाथ है। इट हैज़ टू बी अ क्लोज़ पाथ, इट कैन नॉट बी ओपन, क्योंकि अगर वो ओपन होगा तो कहीं न कहीं करंट का फ्लो ब्रेक हो जाएगा। या फिर आप ऐसे देखो कि सर अ, अगर आपको अगर आपको एक ट्यूब में पानी फ्लो कराना है, लेट्स से मेरे पास एक ये ट्यूब है, राइट? ऐसा एक ट्यूब है, जिसमें मुझे पानी फ्लो कराना है। लेट्स से मेरे पास ऐसा एक ट्यूब है, जिसके अंदर मुझे पानी का फ्लो कराना है।
मैं चाहता हूँ कि पानी का इनलेट यहाँ से हो, पानी यहाँ तक आए, ऐसे बहे, राइट? और फिर वापस से ऐसे सर्कुलेट करता रहे। तो क्या मुझे आई हैव टू मेक श्योर देयर इज़ नो लीकेज इन बिटवीन, कहीं पे कोई लीकेज ना हो जाए, क्योंकि अगर कहीं पे लीकेज आ गया, तो पानी फैल जाएगा, पानी वहाँ से गिर जाएगा। I'll be creating a setup in which I'll be making sure that it has to be in the close path. एक बहुत ही क्लोज पाथ हो इलेक्ट्रिक सर्किट का, और वहां से हमारा करंट फ्लो होगा, ठीक है? ओके, तो दिस इज द वेरी बेसिक एनालॉजी दैट आई एम जो बिल्डिंग इन योर माइंड। अभी इसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बस ये आपके माइंड में इलेक्ट्रिसिटी की पूरी एक पिक्चर क्रिएट करने के लिए है। मैं आपको अभी जो दे रहा हूँ जस्ट अ ट्रेलर ऑफ द होल चैप्टर, राइट? विल यू वाचिंग द मूवी ऑल टुगेदर वेरी सून। अभी बस ट्रेलर देखो उसका और उसको एंजॉय करो। अभी नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? नाउ सर इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ये बहुत अमेजिंग चीज है, अभी हम लोग उसको अच्छे से अभी देखेंगे। तो द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। अब भाई ध्यान से, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है चार्जेस का फ्लो। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट? हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट? आई होप तुमने पढ़ा होगा। करंट मीन्स द फ्लो, करंट मीन्स द फ्लो, दिस इट कुड बी फ्लो ऑफ एनीथिंग। लाइक अगर मैं वाटर करंट की बात करूं बच्चों, वाटर करंट की बात करूं तो एक रिवर से वाटर फ्लो होता है, राइट? अगर एक रिवर से वाटर फ्लो होता है, तो वी से दैट वहां पे वाटर का फ्लो हो रहा है। इट मीन्स दैट वाटर इज गेटिंग फ्लोन, एंड दैट मीन्स कि सर वहां पे वाटर करंट है। करंट का जो बेसिक मीन है, इट इज टू फ्लो, राइट? अभी फ्लोइंग ऑफ व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, कि फ्लो क्या हो रहा है। जैसे जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं, वाटर करंट की बात करेंगे तो वाटर फ्लो होगा, राइट? इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे बच्चों, लोग इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे तो चार्जेस फ्लो होंगे। क्या फ्लो होंगे? चार्जेस फ्लो। चार्ज का फ्लो जो होता है इज आर इलेक्ट्रिक। बहुत ही अमेजिंग। इलेक्ट्रिक करंट इज कैरीड बाय मूविंग इलेक्ट्रॉन। कौन करता है ये? सर ये इलेक्ट्रॉन करते हैं। ना द क्वेश्चन इज कि सर इलेक्ट्रॉन ही क्यों करते हैं? व्हाई द इलेक्ट्रॉन्स आर ओनली डूइंग दिस? तो मैं अपने शब्द में थोड़ा बताऊंगा आपको। लाइक यू मेनी ऑफ यू माइट नॉट बी लाइक, आपको शायद you might not be convinced by my way, but इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना एक बहुत ही सिंपल लॉजिक से आता है बच्चों। वी नो दैट एटम्स मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अगर मैं एक एटम की बात करूँ तो एक एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, पास प्रोटॉन्स होते हैं, और इसी के अंदर न्यूट्रॉन्स भरे होते हैं। द आउटर साइड ऑफ इट, द शेल्स और द ऑर्बिट्स दैट वी कॉल, इसमें होता है सर, इसमें होते हैं सर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? एंड these are filled up with the different numbers of electrons, हाँ कि ना? Electrons keeps on revolving, electrons keeps on revolving in these orbits। सुना है आपने, पढ़ा है आपने, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा बच्चों इन क्लास 9th एज वेल, 6 7 एंड 8, राइट? अभी नाउ if I am taking an example, इसमें let's say there's a third orbit as well, ठीक है, जिसमें दो इलेक्ट्रॉन है, मान लो there are two electrons, only two electrons in it, right? One and now, when protons and neutrons which are inside the nucleus, they are tightly packed. They don't have the freedom to move, you can say, कि वो बाहर नहीं निकल सकते। They are packed inside a closed nucleus, हाँ कि ना? वो बाहर निकल ही नहीं सकते। तो निकलेगा कौन बाहर? सर जो बाहर है वो बाहर के काम करेगा ना। बाहर कौन है? बाहर हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट? बाहर कौन है बच्चों? तो ये हमारे प्यारे प्यारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन काम करते हैं मूव करने का। इनको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं या फिर बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। दोज़ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर फ्री टू फ्लो, यही फ्लो करते हैं। जैसे कॉपर में, एल्युमिनियम में, सिल्वर में ये फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेज़ेंट होते हैं। दैट इज़ व्हाई तो हम लोग उनको कंडक्टर से नवाज़ते हैं, तब उनको कंडक्टर बोलते हैं हम लोग उनको। जो इनके पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर। आपने कंडक्टर और इंसुलेटर की डेफिनेशन पढ़ी है। नाउ हाउ वी डिफाइन अ कंडक्टर? कंडक्टर टू आवर टर्म आर दोज़ व्हिच कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, जो फ्लो करा पाए, राइट? इलेक्ट्रिसिटी का। नाउ व्हाट इज दैट इलेक्ट्रिक फ्लो? सर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो का मतलब क्या है? सर चार्जेस आर मूविंग। व्हाट चार्जेस आर दे? अगर हम लोग बोल रहे हैं दैट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लोग बोल रहे हैं अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, तो व्हाट आई एम सेइंग, सर अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, अगर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है, अगर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है, इसका मतलब है सर कि चार्ज फ्लो कर रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल अबाउट चार्जेस। अगर चार्जेस फ्लो होंगे तो कौन सा चार्ज फ्लो होगा? सर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। तो very simple analogy is here. Sir, electricity is because of the charges, and these charges are electrons only, right? Because they have the freedom to go out. और मैं एक शब्द में इनको एक और नाम देता हूँ। I call them आवारा, because they are free to move and they are the one who are making our life easy.
डिफिकल्ट एट द सेम टाइम इफ नॉट बीइंग टेकन केयर ऑफ। अगर आप सर्किट को छू लेते हो तो वो आपके लिए ट्रबल भी है। लेकिन बट while calling them, I am also making sure that I give them importance as well। मैं इनको बोलता हूँ मेरा प्यारा आवारा, ठीक है, मेरा प्यारा आवारा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो प्यारा आवारा इलेक्ट्रॉन ही सेम टाइम में मूव करता है और हमें हेल्प करता है चार्जेस को ले जाने के लिए, राइट। यू वोंट बी बिलीविंग दैट इन, लाइक लेट्स से if I'm having this wire, let's say I'm now, in this simple wire, which is let's say 10 centimeter long, right? In this 10 centimeter long wire, there could be trillions and trillions of electron, right? 10 की power 18 में जाते हैं ये इलेक्ट्रॉन। सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इस छोटे से वायर में। हाउ कैन यू इमेजिन कि how many free electrons could be there that they are moving and helping the charge to be getting carried away, right? अब अभी यही चार्ज है जिनकी वजह से यार यू यू आर सीइंग द थंडर स्टॉर्म, यू आर सीइंग द इलेक्ट्रिफिकेशन। अब जो आपके ट्रांसफॉर्मर्स में जो इलेक्ट्रिसिटी चलती है ये वही इलेक्ट्रॉन है। आपने देखे हैं इलेक्ट्रॉन, राइट? तो शॉर्ट सर्किट होता है जब आप देखते हो वो भूम से हुआ, तो दीज आर द इलेक्ट्रॉन which get carried away। यहाँ पे देखो, लाइक इन दिस ऑल्सो यू कैन सी द थंडर स्टॉर्मिंग हियर। अगर आप यहाँ पे थंडर स्टॉर्मिंग देख पा रहे हो, सिस्टम, हाँ, अगर आप इसको देख पा रहे हो तो यू मस्ट बी सीइंग कि सर ये जो है ये इलेक्ट्रॉन ही है। दीज आर द इलेक्ट्रॉन व्हिच आर कोलैबोरेटिवली मेकिंग अ लाइटनिंग इफेक्ट, राइट? चलो, तो ये बात समझ आ रही होगी आपको। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट, सिंस दे कैरी द चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर, वी कॉल देम अ कंडक्टर। बाय कन्वेंशन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स, राइट? तो करंट की जो फ्लो होता है, ये कन्वेंशन है बच्चों। जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो करंट के अपोजिट होता है, या फिर जो करंट का फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है। बोथ थिंग्स आर सिमिलर, राइट? एंड आई बी मेकिंग द डायग्राम्स एंड शोइंग यू इन ब्रीफ एज वेल। बस यहाँ से आप चीजों का भी पॉइंट बना के कनेक्ट कर लो, so that you will be getting the ideologies, the basic concept and the ideologies of the basics of it, right? चलो, तो इलेक्ट्रिक टर्मिनोलॉजीज की बात हो गई हमसे। अभी चलते हैं बहुत जल्दी से आगे और बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। अभी अभी सबको फंडामेंटली पढ़ेंगे। तो मैंने आपसे कहा ना कि हम लोग चीज़ों को फंडामेंटली अलग से ही पढ़ रहे होंगे, तो हम लोग उसको भी पढ़ते हैं अलग से। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? मैंने बोला बच्चों, इफ अ नेट चार्ज q flows across any cross section of a conductor in t time, then I then the current I through the cross section area is I is equals to q upon t। इस बात को ऐसे देखो, लेट्स से आई एम हैविंग अ वायर, राइट? इस वायर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेट्स से देयर आर ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई एम शोइंग सम हियर, राइट? मैं इसको क्या कर रहा हूँ बच्चों, इस वायर को मैं कनेक्ट कर देता हूँ एक सर्किट से। सर्किट का थोड़ा-सा मैं डायग्राम बनाऊँगा कि आप लोग थोड़ा समझना उसमें। ये कुछ चीज़ें ही ले रहा हूँ मैं, ज़्यादा कुछ नहीं लूँगा। मैंने बस एक सेल लिया है बच्चों अभी, जिसके पास जो बड़ा टर्मिनल होता है दैट इज़ योर पॉजिटिव, जो छोटा वाला होता है इसको बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल, राइट? तो अभी क्या हो रहा होगा बच्चों, ध्यान से देखो, राइट? अभी क्या आ रहा होगा? अभी अगर ये मैंने पॉजिटिव टर्मिनल लिया है, ये मैंने नेगेटिव टर्मिनल लिया है, तो सम वे these electrons when they are connected, अभी अगर मैं इसको कनेक्ट नहीं करता हूँ, let's say in the initial case I am not connecting them, in the initial case यहाँ पे कुछ नहीं है, let's say यहाँ पे कुछ नहीं है, but this is just a wire, a piece of wire, circuit is not closed। Why? Because there is no closed path। But if I create a closed path, अगर मैं closed path create कर देता हूँ इनके लिए, let me create a closed path, तो इस क्लोज़ पाथ में मैं एक सेल या फिर एक बैटरी लगा देता हूँ। व्हाट यू ऑल बी सीइंग, ठीक है? दिस आर टर्मिनल, 2 टर्मिनल होते हैं बच्चों, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, डिफरेंट पोलैरिटी के होते हैं, डिफरेंट चार्जेस इनमें एक्युमुलेट होते हैं, राइट? तो होगा क्या अभी? सर जो नेगेटिव है चार्ज, राइट? ये आप देख रहे हैं यहाँ से कनेक्टेड है, जो पॉजिटिव चार्जेस है वो यहाँ से कनेक्टेड है। अभी आप लोग मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन आर द वन व्हिच आर होल्डिंग द नेगेटिव चार्ज, राइट? Electrons are the one which are holding the negative charges। तो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू वेयर दे विल बी गोइंग, ये लोग कहाँ जा रहे होंगे? तो एक नेगेटिव चार्ज ऑलवेज विल टू मूव टू द पॉजिटिव, राइट? एक नेगेटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव के पास जाना चाहता है। तो क्या जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, अगर मैं उसको ऐसे रिप्रेजेंट करूँ येलो कलर से, तो वो नेगेटिव टू पॉजिटिव हो जाएगा। ऑल द इलेक्ट्रॉन विल बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन। तो सब ऐसे भागेंगे, इधर साइड भागेंगे सब, राइट? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे। लेकिन बाय कन्वेंशन व्हाट वी हैव स्टडीड दैट flow of the current is opposite to that of the electron। तो now what we can see, सर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, देखिए ऐसे जा रहे हैं, राइट? दिस इज योर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है। तो सर जो करंट का फ्लो हो रहा होगा, मतलब करंट का जो फ्लो होगा सर वो तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा।
तो जो हमारे आई जा रहा होगा, आई रिप्रेजेंट आई बाय अ रेड पेन। आई को अगर मैं रेड पेन से रिप्रेजेंट करता हूँ बच्चों, रेड पेन से यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में जा रहा होगा क्योंकि उसका फ्लो ऐसे होगा। आई वुड बी फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। तो ये बात तो हो गई फ्लो की। बट हाउ वी डिफाइन द चार्ज? तो अगर हम लोगों को करंट को डिफाइन करना है इन द रिस्पेक्ट ऑफ द चार्ज, क्योंकि करंट को डिफाइन करने के लिए चार्ज को लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद से ये पूछते हो अभी कि सर करंट को डिफाइन करने के लिए चार्ज का क्या इंपॉर्टेंस है, चार्ज कहाँ से आया बीच में? तो मैं आपसे एक बहुत सिंपल टर्म बोलूँगा, यार करंट बन ही कैसे रहा है? चार्ज से तो बन रहा है। हम लोग यही तो बोल रहे हैं, द फ्लो ऑफ द चार्जेस इज़ डिफाइनिंग द करंट। तो अगर चार्ज ही नहीं फ्लो होगा तो करंट कहाँ से आएगा? उसको डिफाइन करने के लिए हमने टाइम और लगा दिया कि सर कितने टाइम में फ्लो हो रहा है, दैट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट कि वो डिफाइन करेगा कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है। जैसे कि आप जब ऐसा देखते हो, जैसे आप वाटर का फ्लो देखते हो वाटर के फ्लो में you see कि how much water is getting flowed and अंडर व्हाट टाइम या फिर एट व्हाट स्पीड इट इज फ्लोइंग, राइट? तो हम लोग यही देख रहे हैं कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है और कितने टाइम में फ्लो हो रहा है। तो इन ऑर्डर टू डिफाइन द करंट व्हाट वी से, if we can measure how much amount of charges is flowing in per unit time या फिर in the time that they are taking to flow, we can define the current. Current की definition यहाँ से आई, if a net charge q flows across any cross section of the conductor in time t, then the current I across the cross section is defined at I is equals to q upon t. Then we can define the amount of current that is flowing through the wire is equivalent to the अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज फ्लोइंग इन पर यूनिट टाइम या फिर जितना भी चार्ज जितने भी टाइम में जा रहा है दैट इज आर करंट। इजंट इट अमेजिंग बच्चों? अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं व्हेन P एंड Q आर बोथ बी इक्वल, I और Q कब बराबर होगा? तो आप कहोगे सर T को हटाना पड़ेगा, इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे 1 सेकंड ले लूंगा instead of t, if I take 1 second, then my q and I would be same. तो अगर मुझे I को डिफाइन करना है, I'll be saying I is equals to q by t, amount of charge flowing through the wire in per unit time या फिर the time it is taking to be flown in the wire, या फिर मैं इसको एक और बहुत सिंपल जैसे आपको जो लिख के आना है, that is how you will be defining the current. Current is what? You will be saying current या फिर electric current, better to say that electric current, you will be defining that electric current, इवन इसको आप लोग बहुत हाइलाइटेड पॉइंट से लिखना बच्चों क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेट मी टेल यू। तो हाइलाइट दिस पॉइंट नाउ, सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए ये, ठीक है? क्या लिखोगे आप? इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड as the rate of flow of the charges, the rate of flow of what? क्या फ्लो हो रहा है बच्चों? चार्जेस। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन जिससे आप इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कर सकते हो। तो इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। हमने रेट का नाम ले लिया, इसके मतलब है टाइम इज गेटिंग इन्वॉल्व, राइट? अगर हमने रेट का नाम ले लिया, इट मींस द टाइम इज गेटिंग इन्वॉल्व। तो व्हाट आर द इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द चार्जेस। तो यहाँ से अगर मुझे फिर से डेफिनेशन डिफाइन करना है तो आई विल बी सेइंग आई इज व्हाट क्यू अपॉन टी। अच्छा अगर मैं इसके यूनिट की डिफाइन करूं बच्चों, तो लेट मी टेल यू हाउ द चार्जेस आर गेटिंग डिफाइंड। एक बार मैं चार्जेस को आपको थोड़ा सा और आपके लिए डीप लेके चलता हूँ चार्जेस के लिए। तो जब हमने यहाँ पे चार्जेस के नाम लिए थे बच्चों, तो चार्जेस को मेजर करने के लिए भी हमें क्या चाहिए ना? सर आपने ये तो बताया कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो चार्जेस पे डिपेंड करती है एंड चार्जेस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करते हैं। तो अगर चार्जेस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रहे हैं, इफ आर charges are dependent on the electrons, then isn't it important कि how many electrons are there that will be defining the charges? The number of electrons are going to define the charges. जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा चार्ज होगा। ये वही बात है ना कि जितना ज्यादा पानी होगा उतना ज्यादा फ्लो होगा, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा चार्ज होगा। सिंपल सी बात है, राइट? तो इलेक्ट्रॉन्स आर समवेयर डिफाइनिंग द चार्जेस। तो अगर मुझे चार्जेस को डिफाइन करना है बहुत ही सिंपल डेफिनेशन में, तो मैं आपसे कहूंगा electrons are defined या फिर the net charges are defined by the number of electrons and the charges that an electron hold। इसको हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी बोलते हैं। there is a separate slide for it, just let me show it to you all।
what is quantization of charge to you all? लेकिन यहाँ से एक बात जो बात आपको बहुत क्लियर हो रही होगी कि चार्जेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, क्योंकि ये चार्जेस ही अगर ना होते तो शायद कहीं ना कहीं विल बी सेक्रीफाइसिंग द होल कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, राइट? तो ये चार्जेस आर होल्डिंग द इम्पोर्टेंस इन देमसेल्फ, थ्रू देम वी आर डिफाइनिंग कितना चार्ज, कितना करंट, कितनी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही होगी, राइट? राइट एवरीवन? हाँ कि ना? बोलो 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 बोलो। ठीक है, अच्छा, इसी के संग लेट मी शो यू ऑल। ओके, आई let's just me check, everything is fine, yeah, everything is fine. Let's move back to our topic. हाँ, तो अगर मैं बात करता हूँ आपसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, उसका मतलब क्या होता है बच्चों कि टोटल चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, व्हाट इज द टोटल चार्ज that is getting flowed, the total charge that is flowing. अगर मुझे कभी भी टोटल चार्ज निकालना है, मुझे क्या चाहिए? जैसे एक वायर में मुझे सपोज करो चार्ज का फ्लो निकालना है, व्हाट आई विल बी रिक्वायरिंग? आई विल बी रिक्वायरिंग कि सर इसके अंदर अगर मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाए, कितने इलेक्ट्रॉन है, एक है, दो है, हजार है, बिलियंस है, ट्रिलियंस है, क्या नंबर क्या है उनका? इफ आई बी नोइंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, if I'll be knowing the number of electron, and if I multiply it, if I multiply it with a charge of an electron, with a charge of one इलेक्ट्रॉन, अगर मैं ऐसा करता हूँ कि मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, तो मैं टोटल चार्ज निकाल सकता हूँ। वेरी सिंपल थ्योरी। जैसे अगर मैं बोलता हूँ आपसे कि आपके पास एक बकेट है, उस बकेट में 10 बॉल्स है, राइट? जैसे उस बकेट में कुल 8 बॉल्स है। अब अगर इस बकेट में मुझे नंबर ऑफ बॉल्स पता चल जाए, अगर उस बकेट में मुझे नंबर ऑफ बॉल्स पता चल जाए और मास ऑफ बॉल पता चल जाए, मास ऑफ बॉल पता चल जाए, तो क्या मैं टोटल मास निकाल सकता हूँ बच्चों? क्या मैं टोटल मास निकाल सकता हूँ? मैं कैसे निकालूंगा टोटल मास? सर, नंबर ऑफ बॉल्स इनटू मास ऑफ वन बॉल। सर, यूनिटरी मेथड, बोलो हाँ कि ना? टोटल मास निकालने के लिए मैं नंबर ऑफ बॉल्स को मल्टीप्लाई करने वाला हूँ मास ऑफ वन बॉल से। ऐसे ही मैं क्या करूंगा बच्चों, अगर मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाए, मतलब मुझे एन पता चल जाए, और मुझे चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन पता चल जाए, मतलब ई पता चल जाए, राइट? ई नेगेटिव लिखता हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, दैट इज व्हाई it reduces the negative charge. Hello, hello, yes sir. अच्छा, ओके ओके, ठीक ठीक। सो नाउ जस्ट यहाँ से चार्जेस क्या है बच्चों अपने पास? अगर क्यू देखो, देखो आप ध्यान से, क्यू इज व्हाट? सर, एन टाइम ई, यही तो हुआ। सर, यहाँ पे क्या था? एन टाइम एम था हमारे पास। यहाँ पे तो चार्ज आए, वो कैसे आए? सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द चार्जेस, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मेकिंग द चार्जेस टू बी देयर, राइट? ओके, okay, we are having some questions here as well. Okay, what is the quantization? अच्छा, ओके, तो बच्चों ठीक है, मैं आपके जो डाउट्स हैं वो भी संग में लेके चल रहा हूँ। नाउ अरमान राज हैज आस्क्ड कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन? मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन इज, यू कैन से, द combined form of the charges, the total number of the charges that we are saying. तो quantized form का मतलब है कि सर उन्होंने सारे वो collectively लिया हुआ है। In your terms, I am defining in the very layman language कि quantization का मतलब है कि सर सारे charges are getting all together। जैसे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं बच्चों। Let's say I am having, let's say I am having 1 million charges। जो मेरे पास number of charges हैं, they are 1 million, ठीक है? n की वैल्यू जो है, let's say this is 1 million electrons, right? मुझे पता करना है कि Q की वैल्यू क्या आएगी, कितना चार्ज फ्लो हो रहा होगा, कितना टोटल नंबर ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा होगा अगर मैं 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन को एक वायर से पास होता हुआ देखूं। तो यहाँ है वो क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाएगा और चीजें कहीं ना कहीं और इजी हो जाएंगी आपके लिए। अच्छा, Q की वैल्यू बच्चों, Q की वैल्यू मैंने डिफाइन करी, n इंटू ई होती है ना। 1 मिलियन इज व्हाट? 1 मिलियन इज व्हाट बच्चों? याद है ना 1 मिलियन क्या होता है? सो यूनिट टेंस, हंड्रेड, और थाउजेंड, 10,000, 100,000, एंड देन इज योर मिलियन, राइट? अब देखो क्या लिखा हुआ है, 1 इंटू 10 की पावर 6 लिखा हुआ है 1 मिलियन में। तो सर जो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 10 की पावर 6 होने वाले हैं। और सर
एक इलेक्ट्रॉन पे तो चार्ज होता है, इसकी वैल्यू अगर हम लोग को और पता चल जाए, व्हिच वी नो वेरी वेल, हम लोग को पता है कि जो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है दैट इज 1.6 × 10⁻⁹। अच्छा, मैं एक यूनिट बोलूंगा बच्चों, आप लोग को मुझे बताना है कि आपको पता है कि नहीं। दैट इज द कूलम, दैट इज द कूलम। कूलम क्या है? कूलम इज द साइंटिस्ट हु कम अप विद द थ्योरी ऑफ द चार्जेस एंड बेसिकली द इलेक्ट्रॉन्स। तो उनके नाम पे हम लोगों ने चार्ज को डिफाइन भी करा हुआ है और उनके नाम पे यूनिट को भी रखा हुआ है हम लोगों ने। तो अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं इलेक्ट्रॉन के चार्ज का, which is 1.6 into 10⁻⁹, I will be getting the complete charge that is flowing in a wire। तो क्या ये अमेजिंग है ना कि एक वायर में कितना चार्ज फ्लो करना है, we will be defining it by कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसमें, बस ये पता चल जाए हम लोगों को। और ओके ठीक है। ओके। बच्चों मैं संदीप, मैं हिंदी में भी ले रहा हूँ, तो डोंट वरी, आई एम टेकिंग द हिंदी कॉन्सेप्ट एज वेल। कैन वी गेट द नोट्स ऑफ इट? रिया, यू विल बी गेटिंग द नोट्स ऑफ इट, यू विल बी गेटिंग द कंप्लीट नोट्स विद दैट रिटन नोट्स एज वेल। जो मैं लिख रहा हूँ ये भी आपको मिलेगा, बट आई स्टिल सजेस्ट यू कि आप अपने पास इसको लेके चलो, अपने पास भी लिखते हुए चलो, सो दैट इन द केस अगर आपके जो नोट्स होंगे लास्ट टाइम में वही काम आएंगे आपको, ठीक है। वी विल बी प्रोवाइडिंग दैट टू यू ऑल ऑन आवर प्लेटफॉर्म। You can visit dailylearn.com, ठीक है। You can visit our, it is also mentioned in the bottom line। आप देखो फुटर जो है हमारा वहाँ पे मेंशन है, एवरीथिंग इज मेंशन देयर। आप वहाँ विजिट कर सकते हो, नोट्स, वीडियोस, एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर। इवन टेस्ट विल आल्सो बी गेटिंग कंडक्टेड चैप्टर वाइज। आपको डीपीपी भी मिल रही होंगी, डेली प्रैक्टिस शीट्स भी मिल रही होंगी, वहाँ पे सब कुछ मिलेगा आपको। ओके, कूल। ओके, एंड एनी अदर क्वेश्चन? ओके, ठीक है। अभी और क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे हो तो आई विल बी आंसरिंग देम। आई एम रीडिंग द चैट राइट हियर। मैं क्वेश्चंस रीड कर रहा हूँ आपके बच्चों। ओके, चलो, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है मुझे। आप लोग बता दो, और मेक श्योर कि यू आर लाइकिंग द कंटेंट एंड सब्सक्राइबिंग, और कीप कमेंटिंग अबाउट रिगार्डिंग योर डाउट, सो दैट वी विल बी कोलैबोरेटिंग सॉल्विंग इट। ओके, चलो, मैं हिंदी में भी बोल रहा हूँ, इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ, डोंट वरी, आई एम कम्युनिकेटिंग बोथ वे। अच्छा, यहाँ से देखो 1.6 तो मैग्नीट्यूड आ गया हमारा। ना पावर स्पेसेस आर सेम, द पावर विल गेट एडेड। तो सर 6 - 19 ऐड करोगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा आपके पास। तो इट फ्रॉम हियर इट शुड बी 1.6 into 10⁻⁻3। और सर यूनिट क्या बताई आपने? सर यूनिट बताई आपने कूलम। कूलम कूलम इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द चार्जेस, वो यूनिट होती है। तो ये हो जाएगा हमारे पास टोटल चार्ज। सर ये तो बड़ी कमाल की चीज हो गई। अगर हमें ये पता है कि हमारे पास चार्ज, अगर हमको चार्ज निकालना है, हमको 2 चीज़ चाहिए होंगी सर, 2 चीज़ भी नहीं सर, बस 1 चीज़ चाहिए, क्योंकि ये हमको पता है, दिस इज़ द कांस्टेंट ना, दिस इज़ द कांस्टेंट, एवरीवन शुड लर्न दैट व्हाट इज़ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये हमको याद होना चाहिए बच्चों। इट इज़ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो यार इसमें इलेक्ट्रॉन होता है तो बच्चों नेगेटिव होता है, लेकिन हम लोग टोटल चार्ज निकालेंगे, तो चार्ज के लिए इंपॉर्टेंट है हमारा मैग्नीट्यूड, उसकी वैल्यू, अदर देन इट्स साइन। तो हम लोग उसको ले रहे होंगे, ठीक है। तो टोटल चार्ज इज़ व्हाट? टोटल चार्ज इज 1.6 × 10⁻13 कूलम। ध्यान से देखो तो ये चार्ज बहुत कम है, ध्यान से देखो ये चार्ज बहुत कम है, राइट। बट स्टिल ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये नहीं होते, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इससे बहुत ज्यादा होते हैं। वहां पे जो चार्ज आता है वो सफिशिएंटली बड़ा आता है। या तो मैंने मतलब एक छोटा सा एग्जांपल लिया आपको, आपको देने के लिए, ठीक है। दे आर इन 10⁻18। मैं अभी प्रूफ भी करूंगा कितने होते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे अभी। ओके, चलो, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिकल टर्मिनोलॉजीज हो गई हमारे पास, सर्किट की, इलेक्ट्रिक सर्किट की, इलेक्ट्रिक करंट की, राइट। और यहाँ से हम लोग ने इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन भी करा। वी डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट, एज द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द चार्जेस, ठीक है। अब ना पोटेंशियल डिफरेंस की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो डोंट वरी अरमान, यू हैव आस्क्ड व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कभी हम लोग आगे देख रहे होंगे, इसी के जस्ट पार्ट पोटेंशियल डिफरेंस ही है। वी विल आल्सो बी स्टडीइंग दैट द डिफरेंस इन द पोटेंशियल एंड हाउ द पोटेंशियल इज गेटिंग डिफाइंड, उसकी हम लोग बात कर रहे होंगे। आई होप इलेक्ट्रिक करंट तक आपको चीजें समझ आ रही होंगी। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? सर अगर मैं आंख बंद करके अगर अगर खुद अपने से आंख बंद करके पूछूं कि आपके लिए इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो यू विल बी कॉलिंग योरसेल्फ इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ द चार्जेस, बट फ्लो ऑफ द चार्ज इन द टाइम आल्सो, कि हाउ मच टाइम इट इज टेकिंग, तो इट इज द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द चार्ज। ये ना भूलना बच्चों, ये डेफिनेशन अगर भूल जाओगे तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मिस हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द चार्ज। हम लोग उसको I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी से डिफाइन करेंगे। और इसी का एक और फॉर्म बन सकता है, Q इज इक्वल टू आई इंटू टीबी, राइट 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 राइट। अच्छा बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं अभी कि सर आई की यूनिट क्या होती है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द करंट, तो बच्चों व्हाट यू आर सीइंग, आई हियर यहाँ पे क्या है, कूलम, ऊपर चार्ज है तो ऊपर कूलम आ जाएगा, नीचे टाइम है तो सेकंड आ जाएगा, कूलम पर सेकंड। लेकिन हम लोग इसको एक और नाम से जानते हैं, बाय द नेम, दैट करंट इज गेटिंग सजेस्टेड, एम्पियर। एम्पियर इज द वन बच्चों
हु कम अप विद द थ्योरी ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, तो हम उसको इसके नाम से जानेंगे, एम्पीयर के नाम से विल बी कॉलिंग इट। ओके, चलो यहाँ पे कुछ और पॉइंट है, आई एम टेकिंग इट एज वेल। ठीक है, यहाँ मैंने अभी लिख दिया था बहुत सारा, लेकिन अभी मैं उसको हटाता हूँ जिससे आपके लिए चीजें क्लियर हो जाए। तो ओके, मैं ऐसा करता हूँ कि ठीक है। ओके, सेकेंड पॉइंट रीड्स एज, जो मैंने बताया है वही है सेकेंड पॉइंट भी। एक मिनट रुकना बच्चों। नाउ दिस इज बीइंग डिफाइंड, वी कैन से that what is the SI unit of electric charge। मैंने बात करी SI unit of electric charge is coulomb, just मैंने explain करा आपको, which is the equivalent to the charge contained in nearly 10 into 6 into 10 की power 18 इलेक्ट्रॉन। मैंने बताया बच्चों कि how we define 1 coulomb, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, देयर शुड बी 6 into 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स इन अप्रोक्सीमेशन, नियरली बोला है बच्चों, एक्जैक्टली 6.25 10 की पावर 18 आता है। अब मैंने आपको आइडिया दिया है बस कि एक कूलम में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, देख पा रहे हो, एक कूलम में 10 की पावर 18, नो इमेजिन 1 के बाद 18 zeros will be having in order to making that electron all together। okay, तो बहुत ही अमेजिंग चीज है ये। The electric current is expressed as a by the unit called ampere, we call this ampere, represented by capital A, as you all can see, named after the French scientist एंड्रे मैरी एम्पियर, राइट, उनके नाम पे करी गई। और ये आई कहाँ से, मैंने आपको फिर से बताया बच्चों, कहाँ से आई, इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी वाले कॉन्सेप्ट से आई। यहाँ पे क्यू क्या था हमारा, क्यू था हमारा कूलम, टी था हमारा सेकंड, कूलम पर सेकंड इज व्हाट, दिस इज आल्सो योर एम्पियर, राइट। इसी को हम लोग एम्पियर भी बोलते हैं या फिर कैपिटल ए से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट का फिनोमेनन समझ आ रहा होगा। इलेक्ट्रिक करंट का क्या है सर, मतलब फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, या फिर रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द। तो अगर मैं बहुत ही लेमैन शब्द में यहाँ पे लिखना भी चाहूंगा उसको, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट इज आर रेट ऑफ फ्लो of electrons, right? The rate of flow of electron. Let's move forward and let's solve this question all together। एक क्वेश्चन मैंने बच्चों आपके सामने लाया है, I request you all to solve it। जरा से फटाफट इसको solve करो, फिर आगे चलते हैं। What is electric current to you all? How you all define the electric current? I am reading your chat, so keep asking your doubts बच्चों। In any case, if you are having any doubts, do ask me and let me know if you are having any queries। इसका आंसर मैं चाहता हूँ कि आप लोग सॉल्व करके मुझे चैट बॉक्स में दो। I am waiting for your answers। Question says, question reads as current of 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर का करंट एक फिलामेंट में आ रहा है बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब, एक इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में इतना करंट आ रहा है 10 मिनट में, इट इज टेकिंग द टाइम ऑफ 10 मिनट। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट, कितना चार्ज फ्लो हो रहा होगा हमको ये निकालना है। तो करंट हमको पता है, टाइम हमको पता है, कितना चार्ज फ्लो हो रहा होगा हमको ये बात निकालनी है। जरा सॉल्व करो, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, रीडिंग इट आउट हियर कि कितना क्या आंसर आ सकता है आपका। ठीक है, चलो, तो keep answering, I am waiting for your answers everyone, I hope you all are solving, waiting for your answers। Electric current is given to us, we know that it is flowing in 10 minutes। What is the amount of electric charge that is flowing? I'm reading the comment, Arman, Jyoti, Sandeep and Ria, I request you all to come up, and Rehan, you can come up and answer the question। What do you think, how much electric charge is flowing through the wire? What is your answer? आप क्या बोलते हैं? Solving guys, चलो मैं संग में सॉल्व करता हूँ आपके। Now it says that the current that is being drawn here, सर I की जो वैल्यू गिवन है वो 0.5 एम्पियर है। Amount of current that is flowing is 0.5 एम्पियर by a filament of electric bulb for 10 minutes। The time that is given to us is 10 minutes। now बच्चों यहाँ पर एक खेल हो गया हमारे संग। यहाँ से देखो जो टाइम है ये तो मिनट में दे दिया गया हमको, बट व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग द टाइम शुड बी इन सेकंड। हमने देखा था ना, कूलम पर सेकंड हम लोगों ने यूज करा था। लेट्स जस्ट कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू सेकंड। in order to convert minute into second, I will be multiplying it with 60। अब ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। now this is what 600 सेकंड। तो अभी मुझे निकालना क्या है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट, मुझे चार्ज निकालना है बच्चों।
अच्छा ध्यान से देखो, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन करा था? सर वी डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, हमने बोला था आई इज व्हाट? I is what? Q upon T. Amount of charge, या the rate of the flow of the charge defines the electric current. अच्छा, अगर हम लोग I is equals to Q upon T डिफाइन कर रहे हैं, इसको हम कैपिटल लेटर स्मॉल डिफाइन कर सकते हो, राइट? तो हमको बोला क्या निकालने को, हम लोग Q निकालने को बोला गया। सब Q क्या हो जाएगा? I into T। Q होने वाला है I into T। Now I is what? I is 0.5 ampere to us, T is what? It is 600 second। We'll be simply multiplying it and solving it and getting the answer। 0 0 काट दो। 5 into 60 is what बच्चों? 5 into 60 is 300 to you, that is your 300, and it is charge, and it is charge। तो चार्ज यूनिट क्या होती है बच्चों? आप लोग बताइए, मैंने अभी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज? चार्ज इज कूलम। तो क्यू कितना आ गया हमारा? 300 कूलम, ठीक है? चार्ज हो गया हमारा 300 कूलम, सी ओ यू एल ओ एम बी इज द यूनिट ऑफ कूलम, ठीक है? भूलना नहीं, कूलम सी ओ यू एल ओ एम बी इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज एज वेल, वी आल्सो से इट एज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चलो, बहुत बढ़िया। आई होप आप सबके आंसर आ रहे होंगे, बाकी लोग भी इसको कर पा रहे होंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये बात याद रखना बच्चों, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट रिटन हियर। नाउ व्हाट इट सेज that 1 मिली एम्पियर, एक मिली एम्पियर में क्या होता है बच्चों? हाँ, 1 मिली एम्पियर मींस 1 स्मॉल एम, मिली का मतलब होता है छोटे एम से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। 1 मिली एम्पियर में 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर, 1 मिली एम्पियर में 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर करंट होता है। और 1 माइक्रो, माइक्रो में बच्चों एम आएगा, माइक्रो एम्पियर में यहाँ पे यू आएगा, ऐसे तो पी से पी को हो जाएगा। 1 माइक्रो एम्पियर में बच्चों होता है 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर। ये यू होता है बच्चों 1 माइक्रो, माइक्रो यूनिट ऑफ स्मॉल यू से टर्न करते हैं उसको, ठीक है? आप लोग को बच गई, मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, याद भी कर लो उसको, ठीक है? अगर याद कर सकते हो तो याद कर लो। दिस इज देसी सेंटी मिली माइक्रो, ठीक है? आगे भी होता है नैनो पिको फेम्टो वाटो, लेकिन अभी इतना काम का नहीं, नैनो तक याद कर लो, बस नैनो तक याद कर लो। और डेसी मींस व्हाट? डेसी मींस 10 की पावर माइनस 1। ये सब नेगेटिव पावर्स में यूनिट है बच्चों, छोटी यूनिट है बहुत। मिली सेंटी मींस 10 की पावर माइनस 2, मिली मींस 10 की पावर माइनस 3, माइक्रो मींस 10 की पावर माइनस 6, एंड नैनो मींस 10 की पावर माइनस 9। तो आप ऐसे देखो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो, देन नैनो पिको फेम्टो ऑटो होता है, लेकिन अभी उतना आगे जाने की जरूरत नहीं है, इतना काम का नहीं है। आगे क्लासेस में जाओगे तो आई विल बी हाईली रिकमेंडिंग यू टू लर्न दिस, बट अभी नैनो तक आप याद कर लोगे तो इट्स मोर देन सफिशिएंट। तो फ्रॉम हियर यू कैन सी व्हाट इज माइक्रो टू यू, what is micro to you? Micro to you is 10 की पावर माइनस 6, and what is milli to you? Milli to you is 10 की पावर माइनस 3। तो पहले गैप होते हैं वो 1 2 और 3 के होते हैं, फिर गैप को बड़ा कर देते हैं जिससे कि हम लोग यूनिट को इजीली डिफाइन कर पाए, अगर बहुत ज्यादा नाम हो जाता है हमारे पास, राइट? चलो, तो being said that, let's move to the next topic, which is electric potential and potential difference। अभी ना आर्यन was saying, asking the question about the potential। यहाँ मैंने एक बहुत अच्छी सी जिप जिप लेके रखी है, अब जरा इसको रीड करो बच्चों ना, रीड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ ऑब्जर्व दिस, so what you can see that from this waterfall the water is coming upside down, राइट? अच्छा, अभी आपको क्या लग रहा है कि सर इसके अपसाइड डाउन होने के पीछे रीजन क्या है? ये वाटर करंट हो रहा है, राइट? यहाँ पे वाटर का करंट है, मतलब वाटर इज फ्लोइंग, तो वाटर करंट है। ऐसे ही अगर मैं चार्जेस की बात करूँ तो वहां पे चार्जेस का करंट हो जाएगा, राइट? चार्जेस का करंट, इलेक्ट्रिक करंट की बात हम लोग कर रहे होंगे। तो व्हेन यू ऑब्जर्व दिस, व्हाट यू आर सीइंग, कैन यू एक्सपेक्ट इट्स अपोजिट टू हैपन? बताओ बच्चों, कैन यू एक्सपेक्ट द अपोजिट टू हैपन राइट हियर? इसका अपोजिट कोई पॉसिबिलिटी है होना? या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके अपोजिट, मतलब जो हमारा वाटर है यहाँ पे, मतलब हमारा जो वाटर पोटेंशियल है या फिर हमारा जो वाटर का फ्लो है, वाटर करंट है, क्या वो अपोजिट जा सकता है? नो, आई डोंट थिंक। व्हाई? सर यहाँ पर जो वाटर का फ्लो है, इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी। ग्रेविटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। इट मीन्स द ग्रेविटी इज अट्रैक्टिंग द वाटर समवेयर टू कम closer to it, right? So it's a free fall in which water is falling, right? Okay, now let's see. This is clearly a note that water cannot go upside out, downside up, वो नहीं जा सकता, there's no possibility of it। This lead to the potential and the potential difference। यही basically concept है potential और potential difference का। But let's just define it more clearly। But let's just define it first। What we say, read very carefully। For the flow of the charges in a conductor of metallic wire, the gravity of course has no role to play, right? बच्चों, जब हम लोग एक वायर की बात करते हैं
उस वायर में ग्रेविटी का तो कोई रोल नहीं है ना इलेक्ट्रॉन के फ्लो के पीछे। मानो इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो हो रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन में हो रहे हैं, इधर हो रहे हैं या फिर इधर हो रहे हैं, कैसे भी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं उस वायर में, वहाँ पे ग्रेविटी का रोल नहीं है। तो सर रोल किसका है वहाँ पे? वहाँ पे रोल किसका है? तो इलेक्ट्रॉन्स मूव इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर। नाउ वहाँ पर इलेक्ट्रिक प्रेशर मायने रखता है, जिसको हम लोग एक नाम से जानते हैं, दैट इज आर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज अलोंग द कंडक्टर। एक कंडक्टर के अलोंग क्या होता है बच्चों? पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यू ऑल मस्ट हैव सीन द सेल्स एट योर हाउस, राइट? आपने ये सेल्स देखे होंगे बच्चों। अगर आपने ये सेल्स देखे हैं, व्हाट यू ऑल हैव सीन कि इन दिस सेल्स देयर इज अ पॉजिटिव टर्मिनल, इसको ये जो होते हैं बच्चों, ये पॉजिटिव टर्मिनल होते हैं, एंड दीस टू आर योर नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पे लिखा भी होता है, ध्यान से देखोगे तो दिस दिस हियर इज रिटन है, दिस इज पॉजिटिव। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पॉजिटिव का चार्ज बना हुआ है। दिस इज व्हाट इज योर पॉजिटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव दिख रहा होगा आपको, राइट? देख पा रहे हो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, और यहाँ पर ये लिखा हुआ है नेगेटिव टर्मिनल। Now, what are the positive and negative and how they are different? Now ask yourself, यार ये पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या है? और हम लोग इसको जब इसमें लगाते हैं, एक रिमोट में लगाते हैं, तो व्हाई द रिमोट स्टार्ट वर्किंग? ऐसा क्या है इसमें? क्या क्या इसमें कुछ ऐसा पर्टिकुलर है जो ये ट्रांसफर कर रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव कर पा रहे हैं या फिर चार्जेस का फ्लो हो पा रहा है? क्वेश्चन दिस टू योरसेल्फ, देन यू विल बी गेटिंग द आंसर ऑफ बाय यू एज वेल। तो बच्चों अगर मैं बात करूं, अगर आप खुद से पूछते हो, तो सर यहाँ पे भी क्या होगा? तो यहाँ पे अगर यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव करंट का फ्लो होगा, अगर मैं एक वायर को जोड़ता हूँ, तो पॉजिटिव से नेगेटिव का करंट का फ्लो हो रहा है, तो सर मतलब क्या है कि पॉजिटिव से नेगेटिव करंट जा रहा है। करंट अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहे होंगे? नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे होंगे। सर ये तो बहुत सिंपल सी बात होगी। अगर इस सेल में फ्लो हो रहा है, तो बिना डिफरेंस के नहीं होता बच्चों। जैसे अगर मैं क्या करूं, दो बॉटल लूं, राइट? मैं दो बॉटल लूं, जैसे मेरे पास दो बॉटल हैं, एक मिनट रुको, ठीक है? और गिविंग आई एम टेकिंग दीज टू बॉटल, और मैं इन दोनों को एक पाइप से कनेक्ट कर दूं, टेकिंग देयर लेवल सेम, मेकिंग देयर लेवल सेम, आई कनेक्ट दीज बॉटल, ठीक है? अगर मैं इन दो बॉटल को एक पाइप से कनेक्ट कर दूं, तो व्हाट यू विल बी ऑब्जर्विंग, ठीक है? व्हाट यू विल बी ऑब्जर्विंग, एक बात देख पा रहे होगे कि अगर मैं इन दो बॉटल को एक पाइप से कनेक्ट करता हूं, तो जैसे सपोज करो आपके पास ये पहला बीकर है, और ये आपके पास दूसरा बीकर है, राइट? आपने इनको कनेक्ट कर दिया है विद ये आपके पास बॉटल वन थी, और ये आपके पास बॉटल बॉटल वन और बॉटल टू को हम लोग ने कनेक्ट कर दिया है हमारे एक कनेक्टिंग ट्यूब से, एक पाइप से, ठीक है? अब मुझे आप लोग को एक बात बताना बच्चों, जो हमारी बॉटल 1 है, ये जो बॉटल 1 है और ये जो बॉटल 2 है, अगर बॉटल 1 में मैं खूब सारा पानी भर दूँ, खूब सारा पानी भर दूँ, यहाँ तक भर दूँ, ठीक है? और बॉटल 2 में पानी सिर्फ यहाँ तक हो, तो क्या कैन यू ऑल सी दैट देयर इज़ अ फ्लो ऑफ द वाटर? बोलो हाँ कि नहीं? ये पानी फ्लो करेगा, सर कहाँ से कहाँ करेगा? सर ये यहाँ से इधर साइड जाएगा। कब तक जाएगा? सर ये तब तक फ्लो होगा जब तक दोनों में वाटर का लेवल सेम नहीं हो जाता। क्या एग्री करोगे? पानी फ्लो करेगा, फ्लो करेगा, फ्लो करेगा, और ये पानी तब तक फ्लो करेगा जब तक इसका लेवल बढ़ नहीं जाएगा और इसका लेवल कुछ ना कुछ घट नहीं जाएगा। आप लोग बताओ मुझे, एग्री करोगे इस बात से? जब तक इन दोनों का लेवल सेम नहीं हो जाएगा, तब तक द वाटर विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हायर साइड टू लोअर साइड। बस यही खेल है बच्चों करंट का भी। करंट कब से कब तक मूव करेगा? जब तक इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस हो। अगर इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस है, तो करंट यहाँ से यहाँ मूव करेगा। जैसे ही ये डिफरेंस हटा दिया गया या फिर ये डिफरेंस बराबर हो गया, ये सेल हो जाएगा डेड, तब कोई काम नहीं हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा। ऐसे ही आपके सेल खराब भी होते हैं करके, राइट? तो सर अगर हमारे पास एक सेल है, तो एक सेल के पास पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव के पास बच्चों, आपके पास पॉजिटिव से आपके पास हाई, आप बोल सकते हो हाई पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल है, और नेगेटिव के पास लो पोटेंशियल है। तो सर हाई से लो में चार्ज का फ्लो हो रहा है, राइट? कब तक होगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। इफ यू ब्रेक दिस, अगर कभी आपको फुर्सत मिले, तो इसको ब्रेक करना थोड़ा एफर्ट लगेगा,
but you will find after breaking that there are different layers first, and then there is carbon inside it. इसके अंदर black carbon present होता है बच्चों. That black carbon holds the electron, राइट. उसके पास चार्ज होता है, जिसकी वजह से वो फ्लो कराता है चार्जेस in from positive to negative, from higher potential to lower potential, and that's how the charges are getting flown. ठीक है, चलो. तो इतनी बात अगर आपको समझ आ रही है तो मुझे बहुत मजा आ रहा है. तो सर हो क्या रहा है, पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब सर दो अलग अलग पोटेंशियल होने वाले हैं, दो अलग अलग टर्मिनल्स पे, जिसकी वजह से करंट का फ्लो होगा. नाउ रीड इट अगेन. लिखा हुआ था द इलेक्ट्रॉन मूव्स इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर. अगर डिफरेंस नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे. ऑब्वियसली बात है, पानी मूव कब तक करेगा, जब तक वो डिफरेंस रहेगा. एज सून एज ये डिफरेंस, जैसे मानो ये लेवल पहले ये था, ये लेवल ये था, अगर डिफरेंस बराबर कर दिया जाए, डिफरेंस को जीरो कर दिया जाए, तो पानी का फ्लो अभी रुक जाएगा, पानी वोंट बी फ्लोइंग, राइट. तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल मे बी प्रोड्यूस्ड बाय अ बैटरी और अ सेल. ये कौन करता है, ये एक बैटरी या फिर एक सेल करता है. अब बैटरी और सेल में क्या डिफरेंस होता है पता है आपको बच्चों. एक सेल क्या होता है, एक सेल होता है सिंगल कॉम्बिनेशन. अगर मैं इसके पॉजिटिव को इसके नेगेटिव से कंबाइन कर दूं, तो ये बन गया अभी एक बैटरी. कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, बहुत सारे अगर मैं से सेल लगा दूं या फिर दो सेल लगा दूं, तो ये बन जाती है बैटरी हमारी, राइट. दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द सेल एंड द बैटरी. वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल between the 2 point of an electric circuit carrying some current as the work done of to move a charge from one point to another. अब इसको और डिफाइन करते हैं बच्चों. आपके लिए अगर मैं डिफाइन करूं, मैं पूछूं आपसे कि आपका पोटेंशियल क्या है, व्हाट इज योर पोटेंशियल, कि आपके अंदर कितनी हिम्मत है, कितनी ताकत है, तो आप क्या कहोगे. योर एबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग इज योर पोटेंशियल. बोलो हाँ कि ना. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल, क्या यही होता है कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, कितनी पोपाई द सीजरमैन पालक खा के कितना काम कर सकते हो, राइट. तो वही पोटेंशियल की बात मैं यहाँ पे करूंगा. आपका पोटेंशियल डिफाइन करता है आपके कार्य करने की क्षमता, द वर्क that you can possess, the work, the ability that you can possess, the work that you can do in completing some task is your potential. The same term, the potential of that electric cell, this electric cell or a battery or let's say of a complete circuit is defined by the ability of carrying the charges. क्योंकि वहां पे तो एक सेल का काम है चार्ज को मूव कराना, तो उसकी एबिलिटी क्या है, चार्ज को मूव कराने की है, राइट. तो in order to define the ability of anything, any charge basically, we say how much work can a battery can do in bringing the charge. So the work done to move a unit charge from one point to another. जैसे सपोज करो यहाँ पे क्यू चार्ज रखा था, इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए जो भी वर्क करना पड़ा, भी वर्क करना पड़ा इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए, पर पोटेंशियल. बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना. व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज द वर्क इन कैरिंग द चार्ज. तो V is defined as W by Q. याद रखना बच्चों, इस पूरे का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या आ रहा है, V is equals to W upon Q. It is the amount of work that we can do in bringing the charge from point 1 to point B. So we can define V is what, V is W upon क्यों. बहुत बेसिक, बहुत सिंपल. अगर मैं पूरे को समराइज करूं आपको, तो आपको दिख रहा होगा कि पानी के लेवल से, सेल के डिफरेंस से, या फिर आप इन जनरल पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हो. और उसके लिए ये बहुत अच्छा एक एग्जांपल है. यू आर सीइंग द वाटर कमिंग अपसाइड डाउन, क्योंकि ऊपर हायर पोटेंशियल था, नीचे लोअर पोटेंशियल था, तो नीचे आ रहा था. सिमिलरली पॉजिटिव में था तो पोटेंशियल है, नेगेटिव में कम पोटेंशियल है तो पॉजिटिव से नेगेटिव का मूवमेंट हो रहा होगा. सिंपल एज दिस, राइट. दिस इज आवर पोटेंशियल डिफरेंस. अभी आप अगर सिंक करो तो हमने पढ़ा अभी करंट को, पोटेंशियल को, और यहाँ तक अगर आपको कोई भी डिफरेंस आए तो मुझे बताओ, राइट. चलो, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है, इट इज वोल्ट. अगर हम लोग बात करें V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, जो हमारा रिलेशन है बच्चों, अमाउंट ऑफ वर्क इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज डिफाइंड एज अ पोटेंशियल डिफरेंस. आपको ये डेफिनेशन ऐसे ही याद रखनी है बच्चों कि what is potential difference, the work done to move a unit charge from point 1 to point 2, yeah, from one point to another point, right. So the SI unit of electric potential is your volt and named after Alessandro Volta. ये बहुत important नहीं है, बस वोल्ट याद रखो आप. that is the main importance for you, right. अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन आता है कि डिफाइन वन वोल्ट, आपसे पूछा जाता है डिफाइन वन वोल्ट. अभी अगर आपको एक वोल्ट को डिफाइन करना है तो हाउ यू विल बी डिफाइन द वन वोल्ट. अच्छा, हमने बोला सर V इज इक्वल टू होता है W अपॉन Q.
तो ऑब्वियस सी बात है अगर मुझे यहाँ पे 1 वैल्यू चाहिए, राइट? और मैं यहाँ पे भी जो वर्क ले लूँ मैं 1 जूल ले लूँ और मैं चार्ज जो ले लूँ वो 1 कूलम्ब ले लूँ, ठीक है? तो मैं वर्क लूँ, वो 1 जूल काम करूँ मतलब मैं क्या जो भी काम कर रहा है उसमें 1 जूल काम कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक सेल, बैटरी या फिर एनीथिंग और वो 1 कूलम्ब चार्ज को लेके जाए। तो वी विल बी डिफाइनिंग 1 वोल्ट, राइट? तो ऐसे क्वेश्चन आता है डिफाइन 1 वोल्ट। तो हाउ यू बी डिफाइनिंग 1 वोल्ट व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज बीइंग डन in carrying a charge of 1 coulomb from point A to point B. दोबारा से समझा दीजिए। How we define 1 volt when 1 joule of work is done in carrying 1 coulomb of charge, right, from point A to B. अब पॉइंट ए टू बी ले जाने के लिए जितना भी हमने काम करा 1 जूल हो जाएगा और जो चार्ज होगा वो 1 कूलम हो जाएगा, राइट? दैट इज योर 1 वोल्ट। बस आपको 1 का यूज कर रहा है दोनों तरफ। दैट इज योर पोटेंशियल डिफरेंस इन 1 वोल्ट। ओके, चलो द पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने की डिवाइस भी आती है, बिल्कुल आती है। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय अ मींस ऑफ इंस्ट्रूमेंट वी कॉल्ड एज वोल्टामीटर। एक वोल्टामीटर पे जो डिवाइस होती है, एक पोटेंशियोमीटर भी होती है वैसे तो, लेकिन अभी आप लोग वोल्ट मीटर पढ़ो, वोल्ट मीटर इंपॉर्टेंट है। तो वोल्ट मीटर एक डिवाइस जो हम लोग जिससे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे होंगे कि कितना डिफरेंस है, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट। तो वोल्ट क्या हो गई? वोल्ट उसकी ऐसा यूनिट हो गई बच्चों, right after the name of Ascendro volt, Ascend Alessandro volt, ठीक है? एंड इट इज व्हाट? इट इज 1 जूल पर कूलम। ओके, जीप टूट गई यार एलेसैंड्रो का नाम बोलने में। तो द वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट बिटवीन। याद रखना इसको पैरेलल कनेक्ट करते हैं वोल्ट मीटर को। इसका रीजन क्या है इसको मैं आगे बात करूंगा जब हम कनेक्शन को सीखेंगे। अभी बस माइंड में रख लो, पैरेलल हम लोग कनेक्ट करते हैं इसको, राइट? ओके, तो सर हमने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में क्या समझा अभी तक? पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पर पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल। मतलब सर हम लोग जितना काम कर रहे हैं एक चार्ज को या फिर चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए, द एबिलिटी ऑफ द वर्क, द वर्क दैट इज बीइंग डन in moving a unit charge from point A to point B is defining our work। ये बस समझ आ रही है बच्चों? अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क। That's how we are defining our 1 volt. 1 volt is the amount of work in carrying charge of 1 coulomb from point A to point B. चलो, आई होप यहाँ तक आपको चीज समझ आ रही होगी। चलो अब जल्दी से फटाफट एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इसके, एंड देन वील बी मूविंग फॉरवर्ड। ओके, चलो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। Okay, this is a question. It's a very fine question to you all. आप लोग इसको ट्राई करो बच्चों। क्वेश्चन सेज हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम। अभी 2 कूलम का चार्ज है हमारे पास, 2 की वैल्यू को गिवन है 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट। तो V है हमारा, वो है 12 वोल्ट। अब बोल रहा है कि हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन। अच्छा, हमें कितना काम करना पड़ेगा अगर हमको 2 कूलम का चार्ज लेके जाना है और वहां पे 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो वही सिंपल सी बात है बच्चों। हाउ वी डिफाइन द पोटेंशियल? पोटेंशियल इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो इन ऑर्डर टू डिफाइन द पोटेंशियल व्हाट विल बी सेइंग, सर V इज व्हाट W अपॉन Q। एंड V की वैल्यू को पता है, V की वैल्यू वी ऑलरेडी नो। V is what? 12 volt। Instead of we'll be putting 12, W is what we need to find, Q is what? 2 coulomb। While finding the W, we'll be multiplying the 12 into 2, that is our 24। हमारा जो वर्क आ गया बच्चों, that is 24 जूल। तो यहाँ पे काम हुआ है इन ब्रिंगिंग द चार्ज, दैट इज 24 जूल। बहुत सिंपल है। अगर बोला जाए कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग द चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट हैविंग द पोटेंशियल डिफरेंस इज 12 वोल्ट, इट वुड बी 24 जूल। जूल क्यों बोला बच्चों? जूल क्यों बोला? क्योंकि हमारे पास जो यूनिट है वो क्या होती है? वर्क की जूल होती है। क्या करना, तो एक बार जल्दी से देखते हैं जो हमने यूनिट पढ़ी वो क्या है। सर क्यू की यूनिट क्या थी? चार्ज यूनिट क्या थी बच्चों? कूलम थी। अ, ठीक है। एम्पियर करंट की यूनिट क्या थी बच्चों? करंट आई की यूनिट क्या थी बच्चों? आई की यूनिट थी हमारे पास एम्पियर, याद रखेंगे हम लोग। वर्क की यूनिट क्या आई है सर? वर्क की यूनिट आई हमारे पास जूल, जूल होती है। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट कितनी आई? वी की यूनिट कितनी आई बच्चों? वी जो होता है हमारा वोल्ट होती है वो, ठीक है। रिप्लेस करते हैं इसको जे से, इसको वी से, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं इसको, ठीक है।
और अभी कोई यूनिट पढ़ी क्या हम लोगों ने बच्चों? नहीं पढ़ी, अभी इतनी बात करी हम लोगों ने, ठीक है? चलो वेरी वेल, एक और क्वेश्चन करते हैं। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी? सर आप लोग ये क्वेश्चन करेंगे फटाक से, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। जल्दी से देखते हैं, हाउ मेनी ऑफ यू वुड बी एबल टू सॉल्व इट। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बोल रहा है हाउ मच एनर्जी, हाउ मच एनर्जी, बच्चों एनर्जी की बात कर रहा है। आपको मैं एक छोटी सी हिंट देता हूँ, एनर्जी और वर्क इक्विवेलेंट होता है बच्चों। चाहे आप एनर्जी निकालो चाहे वर्क निकालो, दोनों इक्विवेलेंट होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि जितना आप एनर्जी लेते हो उतना आप काम कर पाते हो। उसको इस एग्जाम्पल से देखो, जितना एनर्जी इनटेक करोगे उतना काम कर पाओगे आप, तो एनर्जी एंड वर्क बोथ आर इक्विवेलेंट, राइट? टू is given to each coulomb of charge passing through 6 वोल्ट बैटरी। each coulomb of charge मतलब Q की वैल्यू जो है वो 1 कूलम है बच्चों, पासिंग थ्रू 6 वोल्ट, तो V की वैल्यू है वो है 6 वोल्ट बैटरी से। फिर से वही करेंगे, V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। हमको जो वर्क या फिर एनर्जी निकालना है, ये हो जाएगा V इंटू क्यू। V की वैल्यू हमको गिवन है 6 वोल्ट एंड पासिंग थ्रू ईच कूलम ऑफ चार्ज, ईच कूलम का मतलब है 1 कूलम, राइट? यहाँ पे आ जाएगा 6 जूल ऑफ वर्क इज नीड टू बी रिक्वायर्ड इन कैरिंग in carrying each coulomb of charge across the 6 वोल्ट बैटरी। कितना काम करना पड़ेगा? 6 वोल्ट काम करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात, 6 जूल काम करना पड़ेगा हमको, क्योंकि Q की वैल्यू यहाँ पे 1 है। एक और चीज़ देखो, जब V इज़ इक्वल्स टू W अपॉन Q है, यहाँ से देखो, अगर आप Q की जगह 1 पुट कर दोगे बच्चों, Q की जगह 1 पुट कर दोगे, तो V हो जाएगा ये W के बराबर हो जाएगा। इन एनी केस, if 1 coulomb of charge is only flowing, what is the observation? That potential is equal to the work। जितनी भी बैटरी लगी होगी वही हमारा काम होगा, या फिर जितना भी काम हो रहा होगा, जितना भी वर्क हो रहा होगा, वही हमारी पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। दैट इज व्हाई द आंसर इज आल्सो कमिंग एज 6 जूल, बिकॉज़ 6 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड। वेरी सिंपल, वेरी इजी। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ इट, कोई बहुत डिफिकल्ट वाला टास्क नहीं है। अच्छा, तो सर V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? वी आर अंडरस्टैंडिंग हाउ एनर्जी इज रिलेटेड इन द वे टू मेकिंग द कूलम एंड द चार्जेस मूव टुगेदर। ये सब बातें समझ में आ रही हैं, तो वेल एंड फाइन, बहुत बढ़िया है। चलते हैं, अभी आज के लिए आई गेस इतना ही रखें क्या? हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं, बाकी आई थिंक इट्स सफिशिएंट फॉर टुडे। वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट अ लॉन्ग टॉपिक। उन्होंने चार्जेस को कवर करा है, करंट को कवर करा है, पोटेंशियल को कवर करा है, और इनके सबकी एनालॉजी समझी है, इलेक्ट्रिसिटी से इनका क्या रिलेशन है, विच इज वेरी फाइन, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन टू ऑल ऑफ अस, ठीक है? अगर आपको इतनी बात समझ में आ रही है, मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो बच्चों, एंड कीपिंग एवरीथिंग इन माइंड, वी आर डूइंग वेरी 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 वेल टिल हियर, ठीक है? चलो, तो एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं जो जो पढ़ा है हम लोगों ने, सो दैट देयर वुड बी नो नथिंग व्हिच इज लेफ्ट। एक बार जल्दी से देख लेते हैं, या फिर एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है, वो भी खत्म ही कर लेते हैं संग में, ठीक है? चलो आ जाओ, देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, बस बहुत ही छोटा सा टॉपिक है कि हाउ वी डिफाइन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक डायग्राम्स क्या होते हैं, इसमें मैंने कहा था ना हम लोग बाद में बात करेंगे, तो इलेक्ट्रिक डायग्राम अभी आए हैं हमारे पास, हम इलेक्ट्रिक डायग्राम की बात करते हैं। तो सम कन्वेंशनल सिंबल्स आर गिवन that are used to represent some of the most commonly used electrical components in the electric circuit, which we call as electric circuit diagram। इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कंबाइन करके हम उनको यूज करते हैं, उनका यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनके सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही। उनका यूज केस क्या है, उनका यूज केस मतलब सर वो कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे यूज करते हैं, ये वाला पार्ट, और उनके सिंबल क्या हैं, दोनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रियली फोकसिंग ऑन बोथ ऑफ इट। तो इलेक्ट्रिक सेल की बात करो बच्चों, इलेक्ट्रिक सेल को हम लोग सिर्फ एक ही सेल से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब सर एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। यू कैन आल्सो राइट इट लाइक दिस, पहले नेगेटिव बना दो फिर पॉजिटिव बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? बस अभी जो करंट का फ्लो होगा वो चेंज हो जाएगा, दैट्स द ओनली डिफरेंस, बाकी कैन रिप्रेजेंट इट बोथ वे। एक बैटरी क्या होती है बच्चों? बैटरी इज व्हाट? बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स। काफी सारे सेल्स को मिला दो आपस में, एक एक से ज्यादा सेल को मिला दो, तो एक एक से ज्यादा सेल को मिला दो आपस में, ठीक है? यू विल बी गेटिंग अ बैटरी। नाउ यू कैन सी थ्री सेल्स आर कनेक्टेड हियर, राइट? थ्री सेल्स आर कनेक्टेड हियर टू मेक अ बैटरी। प्लग की क्या होती है? तो जो प्लग की होती है कि स्विच क्या है हमारा? प्लग की होती है स्विच। अब स्विच ओपन है कि क्लोज है? ओपन का मतलब होता है कि बीच में डॉट नहीं होता बच्चों, तो यहाँ पे डॉट नहीं है, राइट? और यहाँ पे डॉट है, दोनों को संग में देखो, क्लोज को देखो और ओपन को देखो, तो डिफरेंस दिखेगा आपको, ठीक है? तो दोनों ही स्विच है हमारे पास। क्लोज स्विच का मतलब है कि सर नाउ वी हैव अ क्लोज लूप। तो इसका मतलब क्या है कि वी हैव अ क्लोज्ड लूप, मतलब अभी करंट फ्लो होगा, अभी आई फ्लो होगा, अभी आई बहेगा यहाँ से, ठीक है? लेकिन इसमें आई का फ्लो नहीं होगा, आई वोंट फ्लो फ्रॉम हियर, यहाँ पे करंट और स्विच है वो
ओपन है, ओपन स्विच का इसको स्विच को आप ऑन और ऑफ से कंफ्यूज ना होना, क्योंकि काफी बच्चे इसको ऑन और ऑफ ले लेते हैं, कहते हैं स्विच ऑन है मतलब ओपन है, नहीं, ओपन का मतलब है खुला हुआ है, खुला हुआ है तो कैसे करंट फ्लो होगा, क्लोज का मतलब है नाउ नाउ द स्विच इज बीइंग क्लोज, अब करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। जॉइंट वायर का कनेक्शन बच्चों ये होता है दैट टू वायर्स आर जॉइंट टुगेदर, हम लोग बीच में डॉट बना देते हैं व्हिच रिप्रेजेंट्स दैट टू वायर आर गेटिंग जॉइंट। अगर वायर क्रॉस कर रहे हैं हम लोग एक दूसरे के ऊपर से, तो हम लोग ऐसे लाके उसके ऊपर से ऐसे बना देते हैं 3D फिगर में, एक वायर ऐसे है लेकिन दूसरा ऐसे जा रहा है, मतलब इट इज नॉट टचिंग बट क्रॉसिंग इट। इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल पता होगा आपको, ये सिंबल यूज ना करना, आप सिंपल वाला ये वाला बनाया करो, ठीक है, ये सिंबल बनाया करो, मस्त ऐसे वैसे करके एक आपका इलेक्ट्रिक बल्ब बन जाता है, बहुत ही अच्छा सा रिप्रेजेंट्स कि भैया यहाँ पे होगी ग्लोइंग, और यहाँ से निकलेंगे अभी रोशनी की किरणें, ठीक है। चलो, रेसिस्टर क्या होता है, रेसिस्टर को हम समझेंगे भी नेक्स्ट टाइम पे, लेकिन अभी सिर्फ सिंबल देख लो। इलेक्ट्रिक रेसिस्टर होता है सर ऐसे 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 हम लोग करंट के पाथ में ब्रेकर बना देते हैं, बहुत सारे ब्रेकर ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, जो रेसिस्टिविटी बोलते हैं उसको, आप रेजिस्टेंस बनाओ, उसमें क्रॉस लगा दो, ठीक है, दैट इज योर वेरिएबल रेजिस्टेंस, या फिर ऊपर से लाके नीचे डंडी बना दो, जैसे योर वेरिएबल रेजिस्टर। और वेरिएबल रेजिस्टर का मतलब होता है कि रेजिस्टेंस अब चेंज होगा, इट इज नॉट सेम, इट इज नॉट कॉमन, अभी वो चेंज करेगा, पहले 5 था अभी 2 हो जाएगा, इसके बाद हम लोग और भी करेंगे, अभी डोंट वरी, जस्ट गो थ्रू द सिंपल वंस, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। एमीटर क्या होता है बच्चों, एमीटर का यूज केस क्या है, इट इज द डिवाइस टू मेजर द करंट, द डिवाइस टू मेजर द करंट, मेजर द करंट, करंट को मेजर करने के लिए डिवाइस होती है बच्चों, उसको बोलते हैं एमीटर। और पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने की जो डिवाइस होती है उसको बोलते हैं हम लोग वोल्टामीटर, ठीक है। पोटेंशियल के लिए जो डिवाइस होती है उसको बोलते हैं हम लोग वोल्टामीटर। तो एमीटर का सिंबल क्या होता है बच्चों, सर्कल, ये बना दो, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, याद रखना, जो ये पॉजिटिव होगा ये पॉजिटिव टर्मिनल सेल से कनेक्ट होगा, और जो नेगेटिव होगा वो नेगेटिव से होगा। सिमिलरली वोल्ट मीटर का केस होगा बच्चों, ठीक है। अच्छा, मैंने को बताया था, जो वोल्ट मीटर होता है ये लगता है पैरेलल में, और जो एमीटर होता है ये लगेगा सीरीज में, ठीक है। अब ये पैरेलल सीरीज क्या है, इसकी बात करेंगे यार, परेशान नहीं होने का, आई एम हियर ओनली, ठीक है, टू ऑल यू। तो ये छोटे से सिंबल से सेल, मतलब एक वाला बैटरी, मतलब बहुत सारे कॉम्बिनेशन सेल के, स्विच अगर ओपन होगा तो बीच में डॉट नहीं होगा, क्लोज होगा तो डॉट हो जाएगा, जॉइंट वायर होंगे तो लगा दो बीच में लाके, और क्रॉस वायर होंगे तो आप ऊपर से निकाल दो, उसमें बल्ब का पता ही है आपको, रेसिस्टर मतलब ब्रेकर्स, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, वेरिएबल रेसिस्टेंस मतलब है कि रेसिस्टेंस, लेकिन वो चेंज होते रहेंगे, डिफरेक्ट होते रहेंगे, तो कभी इधर कभी इधर, वेरिएबल देखो कांटा दिख रहा है आपको, ऐसे देखो, ठीक है, मीटर टाइप का, मीटर स्पीडोमीटर जैसा होता है वैसा, एमीटर का सिंपल बहुत ही सिंपल है, एमीटर और वोल्ट मीटर तो भी और भी सिंपल है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, we are still having the student live with us, so if you are live it means that you are liking our content, so do like it, subscribe and share it with your friends, make sure that you help us getting reached uh, with your friends, with your family, whoever are your colleagues, या फिर जो आपके क्लोज नेटिव में है, सिबलिंग्स हैं आपके, भाई बहन है, अड़ोसी पड़ोसी, सबको शेयर करो यार, हम लोग को मजा आया, आपको भी मजा आया, आप भी देखो इसको, और इट्स अ फ्री कंटेंट दैट वी आर डिलीवरिंग ऑन द यूट्यूब। बाकी सारे आपको नोट्स सोर्स हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, यू कैन विजिट देयर, एवरीथिंग इज मेंशन्ड बिलो, टेलीग्राम ग्रुप इज मेंशन्ड देयर, यू कैन हैव आवर नंबर देयर, यू कैन हैव द मेल आईडी, यू कैन हैव आवर सोशल मीडिया लिंक्स, and you can get 10% off as well, वो भी वहाँ पे मेंशन है, with by using the code that is given there, right? चलो, तो जल्दी से एक बार, अगर अगर एक बार 1 मिनट का टाइम है तो बस जल्दी से एक बार क्विकली रिकॉल कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में क्या-क्या पढ़ा हम लोगों ने आज, इंट्रोडक्शन पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज का, इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल पढ़ा, और इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम भी देखे हम लोगों ने। हम लोगों ने देखा कि टर्म 2 में जो आने वाला चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। लाइक चार्जेस होंगे तो रिपेल करेंगे, अपोजिट अनलाइक होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, सिंपल, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में टोटल चार्ज कितना है, क्यू इज इक्वल टू एनी से डिफाइन करेंगे उसको हम लोग, टोटल चार्ज कितना है उससे डिफाइन करेंगे, क्यू इज इक्वल टू एनी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्जेस। और अगर हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट को डिफाइन करना होगा तो कर लेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को कर लेंगे, और बाय कन्वेंशन तो चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है इट इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक चार्जेस, दैट इज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा तो भाई साहब करंट ऐसे जाएगा। मैं ऐसा याद रखता हूँ कि इलेक्ट्रॉन और करंट आपस में गुस्सा होते हैं दूसरे से, अगर ये गुस्सा है तो अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं लोग, ठीक है। चलो, अच्छा, यहाँ से रिलेशन देखा था, दैट हाउ वी डिफाइन द करंट, इट इज द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द चार्ज, इज व्हाट क्यू अपॉन टी। यहाँ से एक और फॉर्म आप निकाल सकते हो बच्चों, देखो, अगर आप कोशिश करो जो क्यू की वैल्यू पुट कर दो एन ई, मैंने पढ़ी थी लास्ट टाइम, राइट, तो लास्ट लास्ट स्लाइड में, तो आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी, एक और फॉर्मूला बन सकता है यहाँ से, ठीक है। या फिर क्यू इज इक्वल टू आई टी भी एक फॉर्मूला है बच्चों, टी को चले जाओ, क्यू इज इक्वल टू आई टी बन जाएगा। सिमिलरली एन ई इज इक्वल टू आई टी भी फॉर्मूला हो सकता है हमारा, अच्छा
द यूज्ड केस जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और याद रखना कि एक इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है दैट इज़ योर 1.6 इज इक्वल्स टू 1.6 10 की पावर -19, लेकिन नेगेटिव चार्ज होता है कूलम्ब में, राइट? चलो, ये हम लोगों ने देखे थे कि कितने-कितने होते हैं, क्या-क्या यूनिट होती है, उसकी बात करी थी हम लोगों ने। मैथल करा था, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर की वैल्यू सुनी थी, -3 और -6 होती है। देन वी अंडरस्टूड द पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है कि हाउ मच व्हाट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ बैटरी ऑफ कैरिंग द चार्जेस, और या फिर हाउ मच वर्क इट कैन डू इन ब्रिंगिंग द चार्जेस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, फ्रॉम वेयर वी डिफाइन V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q एज अ रिलेशन। ठीक है? 1 वोल्ट को डिफाइन करना होगा तो when 1 joule of work is being done in carrying 1 coulomb of charge, we'll define as 1 volt। इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करे हम लोगों ने, और फिर सर्किट डायग्राम देखे, इलेक्ट्रिक सेल, बैटरी, प्लग, प्लग की ओपन क्लोज, जॉइंट वायर, वायर क्रॉसिंग ईच अदर, इलेक्ट्रिक बल्ब, रेसिस्टर एंड वेरिएबल रेसिस्टर वोल्टमीटर कंबाइन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेम पे। नेक्स्ट सेम पे we'll be covering रेसिस्टेंस, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, और the factors affecting the resistance, इसकी हम लोग बात कर रहे होंगे। मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो, यू विल बी अपडेटेड थ्रू आवर सोशल मीडिया लिंक्स एंड द यूट्यूब कम्युनिटी कि हमारा वो लेक्चर कब होगा। वैसे इट इज शेड्यूल परसों। परसों हम लोग मिलेंगे इसी टाइम पे 1 बजे, एंड विल बी कवरिंग आवर इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू ऑल, मिलते हैं। कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग, दबा दो बेल आइकन। टाटा, सी यू ऑल नेक्स्ट क्लास।